Good evening, friends. Today we'll start with the next chapter, that is infrastructure, from second book of economics, that is uh, India's economic development. Okay, so we'll talk about infrastructure. I think this lecture is for all the classes of B, C, and D. So second book we are revising. So infrastructure, you know very well what is infrastructure. The basic definition, if you talk about it, is the core element of economic and social change. You cannot imagine economic and social change without infrastructure. The infrastructure of a country, when I say infrastructure, both economic as well as social infrastructure must be solid. Okay, they are like support system to production activity in the economy. Okay, everything is linked. And basically, if you talk about infrastructure, it is two dimensional. One is the uh, economic infrastructure, and second is the social infrastructure. So when we talk about economic infrastructure, what is that? Such elements of economic change, those changes which serve which those elements which serve as catalyst for economic growth. So those changes which are required, or which serves as a support system for the process of economic growth, is called as economic structure. Okay, so economic structure is a support system which enhances the growth process of an economy, that is called economic infrastructure. जैसे कि अगर रोड की बात की जाए तो रोड एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है रॉ मटेरियल के ट्रांसफ़र का, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उनको भेजता है कहाँ पे, मार्केट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अपना असर दिखाता है धीरे धीरे। ठीक है ना, इट रिफर्स टू द कोर एलिमेंट ऑफ social change. Social change is also very very important. If your people are not educated properly, if the dropout ratio is very very high, a large chunk of your population is illiterate, then it will surely affect the what we say economic growth. Similarly, healthcare system is in doldrums. Okay, very what we say worse, then also it affect the economic growth. ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होगी और सोशल डेवलपमेंट भी। ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the core element of social changes which serve as a support system for the process of social development of a country. So economic development और social development दोनों चाहिए यहाँ पे, और support system, ठीक है ना, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? It is a support system for the social development, and economic infrastructure is support system for the process of economic growth and social growth, both infrastructure and development, isn't it? Infrastructure and development, they are two sides of the same coin, or you can say, for the development of a country, development of infrastructure is a must, or it is indispensable. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गॉट इट? कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अगर अभी की बात की जाए तो इंडिया में आने से पहले 10 बार सोचेंगी, वो पहले चाइना में जाएंगी, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इकोनॉमिक। ठीक है ना, तो it induces investment, it impacts productivity, infrastructure generates linkages in production, आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस साइज ऑफ द मार्केट, और साइज, अगर मान लीजिए कोई दूर दराज का इलाका, अगर कहीं पे आपका जो मान लीजिए छत्तीसगढ़ हुआ या कोई ऐसा रिमोट एरिया, वहाँ पे अगर मार्केट नहीं है तो उसका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ तक रोड्स नहीं है पक्के, तो वहाँ कोई मार्केट बिल्ड ही नहीं हो सकता और उससे कोई ग्रोथ नहीं होगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस साइज ऑफ द मार्केट। ओके, और इससे लोगों की जो है ज़रूरतें भी पूरी होंगी, और उनका जो है एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, कंट्री की भी होगी और उनकी खुद की भी होगी। इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन्हांसेस एबिलिटी टू वर्क, क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर अच्छी तरह से पनपा हुआ है, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी गुड, देन पीपल वुड बी वेरी वेरी हेल्दी एंड देयर प्रोडक्टिविटी वुड बी वेरी वेरी हाई। ठीक है ना, और इंड्यूसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। अब अगर इंडिया की बात की जाए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको मालूम ही है कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर। बारिश में क्या हालत हो जाती है रोड्स की, आप देखिए। बॉम्बे की हालत क्या हो जाती है, आप देखिए। ऐसा जब बारिश होती है तो आप, हर कोई वहाँ पे शामिल नहीं हो सकता। ठीक है ना,
आप देखिए ट्रेन्स की हालत मुंबई में क्या होती है। सिंगापुर इज़ अ कंट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ कहते हैं कि बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर आप एकदम से गीला कहीं पर नहीं देखोगे, एकदम से सूख जाता। सच एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दे हैव, ठीक है ना। जो है ना सिटी प्लानिंग जिसको कहते हैं, और हमारे यहाँ चीज़ दिस इज़ लैकिंग। So the state of infrastructure in India, energies is the most important component of economic infrastructure. कोई सा भी डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ एनर्जी इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, एंड यू नो वेरी वेल एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, ओके। और योर लाइफ यू कैनॉट इमेजिन इन योर, isn't it, without this energy. एनर्जी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्या होती है ना। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल कंपोनेंट्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कौन कौन से। कमर्शियल एनर्जी कोल, क्योंकि कोल जो होता है इससे आपकी बिजली बनती है ना, कोल से बिजली बनती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक नेचुरल गैस, इसकी आज देखिए आपको बहुत सारे ONGC, सॉरी ONG क्या, नेचुरल गैस आजकल जो है जो व्हीकल भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये सब कमर्शियल एनर्जी सोर्स है, इनके बगैर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते किसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। और जो नॉन कन्वेंशनल है सोर्सेज हैं वो इतने अभी पन पे नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी लाइक फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इससे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चला सकते, छोटा मोटा आप उद्योग चला सकते हैं, घर का काम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर बात करें कमर्शियल सोर्सेज की तो कोल है, नेचुरल गैस है। नॉन कन्वर्शियल की बात हुई सोलर एनर्जी, फोर्थ से फॉरेन कंट्रीज में इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी। अभी इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम बहुत वाइड पैमाने पे इसका इस्तेमाल कर सकें, है ना। बायोमास एनर्जी इंक्लूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस, ये गाँव में हो सकता है, गाँव में कुछ घर हैं जिसे इकट्ठे हो गए तो उनसे खाना इकट्ठा बन सकता है बायोमास। बट आप चाहो कि एक इंडस्ट्री चला लो बहुत बड़ी, ठीक है ना, रिलायंस की इंडस्ट्री चल जाए, वो मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है ना। जियोथर्मल एनर्जी, दैट, हाँ, जियोथर्मल एनर्जी में एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स, जैसे जब कभी आपने देखा समुद्र की जो लहरें चलती हैं उससे भी जो है बिजली बनती है ना, हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर सी पे जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे भी बनती है, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट टाइड्स जो होती है ना, टाइड्स जो ज्वार भाटा बोलते हैं इसको, है ना, जब वो फुल मून डे होता है तो जो सन होता है, सन का भी ग्रेविटेशनल पुल होता है 1/6 ऑफ अर्थ, तो लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, तो उससे भी बिजली बनती है, ठीक है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी डिटेल में, तो जो कन्वेंशनल सोर्स में वो है पावर, कमर्शियल कॉल इलेक्ट्रिक। आप अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, आपको मालूम है पावर सेक्टर के, ठीक है ना। इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हमेशा प्रॉब्लम है ना। आप देखोगे कभी कभी हर तीसरे दिन चौथे दिन बोले लाइट नहीं, बहुत से गाँव में यूपी में चले जाइए बोले हमारे यहाँ तो 6 घंटे ही लाइट रहती है सिर्फ, वो कहेंगे आपको 8 घंटे ही बिजली रहती है। और हमारे रतलाम में भी यही है कि अगर आपके वहाँ बिजली जाएगी तो आप एकदम से शॉक नहीं होगे, आप क्या करोगे, बिजली जैसी जाएगी आप अड़ोस पड़ोस में देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा अंधेरा, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि अरे चलो सबके वहाँ गई है, सबके वहाँ गई है। बट फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, वो बाहर निकल के नहीं देखते, उनको अपनी प्रॉब्लम है, वो सीधे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फ़ोन करके भाई मेरे वहाँ बिजली नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्वेंट प्रोसेस है, वहाँ नहीं है इतना, ठीक है ना। तो ये हमारे वहाँ होता है। तो एक तो ये होता है कि इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पूरा यूटिलाइजेशन जो नहीं होता, बन नहीं पाती, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। और एक और चीज़ है, बिल जो मैनेजमेंट है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, ये प्रॉपर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, हैज़न्ट इट, बिजली चोरी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी बिजली बोर्ड को बहुत नुकसान होता है, हैज़न्ट इट, हमेशा नुकसान होता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, हैज़न्ट इट। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में मीटर लगे रहते, पहले बाहर लगे रहते, अंदर घर में लगे रहते, तो वो मीटर से छेड़खानी जाती थी, हैज़न्ट इट, दे वुड, हैज़न्ट इट, टेम्पर, दे विल डू समथिंग विद द मीटर ताकि बिजली का बिल कम आए और लपक के यूज़ करे। झुग्गी झोपड़ियों में ये होता है कि वो तार खींच लेते हैं
बिजली का तार कहीं से जाता है तो अपने घर में कनेक्शन कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, गॉट इट। तो इस आई होप तो ये सारी चीज़ें, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब भी ये होता है कि जितनी कैपेसिटी है किसी थर्मल प्लांट की उतना वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और वो बन नहीं पाती बिजली पूरी तरह। हेल्थ, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिक, अच्छा, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मैं बस जिम चला गया और 6 पैक्स और 8 पैक्स बना लिए बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं। मेंटल हेल्थ अच्छी भी बहुत ज़रूरी है, एंड सोशल वेल बीइंग, ये तीनों चीज़ बहुत अच्छी है। मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी बोल सकते हो उसको। सोशल वेल बीइंग, आदमी अगर कटा कटा सा रहे, किसी से बात नहीं करे, कोई इससे बात नहीं करे तो उसको टेंशन हो जाएगा, तो वो मेंटली अफेक्ट होगा, फिर मेंटली से फिजिकली अफेक्ट होगा और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, रादर इट मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना। अगर उसके पास वरीज हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आपको मालूम ही है इंडिया के अंदर हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है ना। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट हेल्थ बॉडीज, देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जिस रेशियो से इम्प्रूवमेंट हुआ है उस रेशियो से तो पॉपुलेशन भी बढ़ गई ना। तो वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज डन, इट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। There has been a large scale improvement in health facilities. Following are the highlights. Decline in death rate. Death rate में decline इसलिए हो गया, पहले independence के टाइम it was 37.9, now it is 65. The reason, expansion of medical facilities. Infant mortality rate, जो बच्चा पैदा होता था एकदम मर जाता था पहले, तो वो कम हो गई है, खत्म नहीं हुई यहाँ। Rise in rise in expectancy, life expectancy जो मैंने कहा था आपको अभी कि भाई पहले कितनी थी 37, आज की तारीख में 65, अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ क्या कहते हैं एक्सपांशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, और जो है डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब ये देखो डिक्लाइन इन डेथ रेट, इसका एक नतीजा हुआ कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, और पहले तो ये था कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां, है ना, दे वर कंसिडर्ड एज वेरी वेरी डेडली, बहुत सारी बीमारियां, हैजा, कॉलेरा, अब कई चीज़ों के टीके आ गए हैं, है ना, और ठीक है ना, उसकी वजह से क्या आपने एक बार टीका लगा लिया तो नाउ यू आर इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है ना। तो डेथ रेट डिक्लाइन हो गई है, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेज, रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। देखो यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी, बच्चा पैदा होता था 3-4 साल का हुआ, 5 साल का और डेथ हो गई क्योंकि वो माल नोरिश्ड है। और यहाँ पे जो है रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चा पैदा हुआ और जन्मते ही मर गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ या जन्म के बाद मर गया, दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, बच्चा पैदा होता है और एकदम से मर जाता, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, प्लीज़ बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, है ना। सो रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इन रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी, ज़्यादा जी नहीं पाते थे वो, ठीक है। वुमेन्स हेल्थ, women in India suffer from a serious neglect not only in the area of education but in the area of healthcare as well. More than 50% of women in India in the age group of 15 to 49 years suffer from nutritional deficiency, क्योंकि एक बिलीफ है कि भाई जो औरत है वो सबसे पहले घर के मर्दों को खाना खिलाएगी, उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, औरों के लिए नहीं। तो एक वो चैलेंज है यहाँ पे, स्पेशली इन द रूरल एरिया, ठीक है। हेल्थ इज एन इमर्जिंग चैलेंज, पॉइंट्स गिवन बिलो हाईलाइट द डेफिशिएंसी ऑफ आवर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। एक तरफ तो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं, एट द टॉप पिनेकल, 5 स्टार ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू यू, 5 स्टार नर्सिंग होम ट्रीटमेंट, वहाँ पे आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा ऐसे बहुत जो नर्सिंग होम्स हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपका जो इलाज भी ढंग से नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए आप, ठीक है ना, आप एक कोई डेडली डिजीज़ है उसका इलाज कराने जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, ध्यान नहीं देंगे। कोई बहुत पॉश हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे इलाज करिए, वो इलाज भी करेंगे, एंड यू हैव बट देन यू हैव टू शेल आउट लॉट ऑफ बक्स, लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना।
तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, है ना। जो सरकारी कंट्रोल में है हेल्थ सर्विस, उसकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। कमर्शियल कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, अभी भी कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि अभी चालू हुई है कोरोना। पुअर मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। प्राइवेटाइजेशन, अब क्या हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में भी ऑपरेट कर रही हैं और प्राइवेट भी कर रहे हैं हॉस्पिटल। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसके लिए हैं? ओनली फॉर द रिच एंड फेमस। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस 5 स्टार हॉस्पिटल्स, ओके। और पुअर आप कीप एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल मेंटेन। आप जाके देखिए कभी सिविल हॉस्पिटल में, रतलाम के कहीं के भी, आके हालत देखिए आपकी, क्या आप बाहर निकल के आ जाओगे एकदम से, आपसे रहा नहीं जाएगा। पुअर सैनिटेशन लेवल। So infrastructure facilities support system in an economy. It contributes. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट सपोर्ट सिस्टम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरह से रीढ़ की हड्डी है किसी भी कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस में। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक development of a country both by raising the productivity of factors of production and by improving the quality of life of its people। दोनों चीज़ें, पहला प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ, जैसे कोई प्रोडक्शन है उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी, ठीक है ना। तो बाय राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कुछ फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, ठीक है ना। तो उनमें से एक फैक्टर मान लीजिए क्या है, हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब मान लीजिए उसकी हेल्थ प्रोडक्ट सही नहीं है, काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, मान ली कोई उसने कोई धोख खोल रहा, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा ढंग से, रोड बराबर नहीं है, तो भी उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो बाय राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, काम काज सही चलेगा, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, द क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ेगी, और साथ में देयर वुड बी व्हाट वी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे दोनों चीज़ें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वापस से, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन इज़ अ बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेशन याद कर लेना। फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी और एंटरप्राइज। माइक्रो लेवल पे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और मैक्रो लेवल पे पूरा कंट्री भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपना कॉन्वेंट स्कूल है, तो अगर आप कोई बाहर से आएगा तो वो बोलेगा अरे यार वाह क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, बिल्डिंग हो गया, जो खेलकूद की चीज़ें, ग्राउंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ऐसा नहीं, कंप्यूटर लैब हो गई, साइंस लैब हो गई, हर चीज़ आ गई, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, ये स्कूल के ग्रोथ में सहायक होंगी, ठीक है ना। इट विल सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो इट्स लाइक अ सपोर्टिंग सर्विस, ठीक है ना। तो है ना, इट प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। हर चीज़ में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, या अगर बात करो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक, है ना, एंड फॉरेन ट्रेड, घर का जो ट्रेड है उसके लिए भी, रूरल एरियाज में जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए भी, एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं है, देन श्योरली इट वुड अफेक्ट द फॉरेन ट्रेड। वो कोई नहीं आना चाहेगा आपके कंट्री के अंदर, ठीक है ना। इसमें ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स भी आ गए, ध्यान रखना है ना, जो रैट टैपिज्म होता कंट्री के अंदर, है ना, सरकारी तंत्र जो है जो बहुत ही बेकार है, करप्शन वगैरह, वो भाग जाएंगे फिर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन डू नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड बट हेल्प इन प्रोमोटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। तो अब रोड आपने बना दिया, रोड बनाने की वो कुछ डायरेक्टली किसी चीज, एक बार उसने, मान लीजिए रोड बन रहा है कोई, तो उसने इकोनॉमी, वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक बार ही करेगा। लेकिन उसका जो है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन या कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो एक तरह से एवर लास्टिंग रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा, है ना, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली कुछ गुड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी उसकी वजह से, ठीक है ना, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत रहेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग पावर एक्सेट्रा, ठीक है ना।
गॉट इट। सो बैंकिंग भी हुई, डायरेक्टली कोई कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन बैंकिंग अगर सही ढंग से चले और किसानों को बराबर लोन मिले तो उस लोन की वजह से किसान कुछ चीज़ें अच्छी तरह बो पाएंगे, दे विल बी एबल टू इंगेज इन द कल्टीवेशन एक्टिविटीज़, और उसकी वजह से उनको प्रॉफिट बहुत होगा। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर वुड अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोसेस। पावर है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, है ना, पावर अगर उनको बिजली बराबर मिले किसको, किसानों को, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। These services include roads, railways, ports, airport, dams, power stations, oil and gas pipelines, telecommunication facilities, सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। They also include countries' educational system, ये social structure, social इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस। ओके, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ, यूनिवर्सिटीज़ बहुत, लेकिन आपका जो है बेसिक ढांचा, ये जो बेसिक फाउंडेशन है वो थोड़ा वो जो है चरमरा रहा है। क्या चीज़? वो बेसिक फाउंडेशन क्या है? द द द प्राइमरी स्कूल और जो एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम है यहाँ पे इंडिया के, वो थोड़ा ख़राब है। एक्सपांशन होना चाहिए, बट लेकिन एक्सपांशन शुड बी व्हाट वी से, एक्सपांशन शुड बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। सिर्फ क्वांटिटेटिव कर दिया आपने तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्लम्स की हालत देख लो आप। एंड द मॉनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी काम करना चाहिए। कैसे? बहुत प्रॉपर तरीके से। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मैं देखो बता देता हूँ वापस ही, हमने देख लिया सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू द कोर एलिमेंट ऑफ सोशल फाउंडेशन, बता दिया मैंने, directly from outside the system of production and distribution, educational institution, hospital, sanitary condition and housing facilities, सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल रहा है तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है ना। हॉस्पिटल, सैनिटरी कंडीशन एंड हाउसिंग फैसिलिटी, बिकॉज ये सारी चीज़ें सोसाइटी को अफेक्ट करेंगे, सोशल चेंज को अफेक्ट करेंगे, एंड इट विल रेज द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। और एक और चीज़, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर लिंक्ड टुगेदर, एक अफेक्ट होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक। अब ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया, ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज विच सर्व एज अ फाउंडेशन for the process of economic growth. Okay, all such elements of economic changes which serve as a catalyst for economic growth, ऐसे भी लिख सकते हो आप तो भी चलेगा, ठीक है ना। all those positive economic changes which serve as the catalyst for the economic growth, ये भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है ना। this helps in the process of production directly, example transportation, communication, energy, power, etc, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंस बिटवीन आप लोग देख लेना। अब मैंने बता दिया बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम विच प्रोवाइड्स support to the efficient working of a modern industrial economy. For a modern industrial economy, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब आप उसके बगैर रह नहीं सकते। मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो लार्जली डिपेंड्स ऑन इट, दोनों मतलब एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए अभी आज की तारीख में किसानों ने हाईवेज ब्लॉक कर दिए तो उससे क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन वुड बी ब्लॉक्ड। जो माल आता है कहीं से, हरियाणा से, दिल्ली से, और दूसरी जगह जाता है, वो ब्लॉक हो गया, तो इससे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वुड बी डिसरप्टेड, ठीक है, क्योंकि वो ट्रक्स बराबर नहीं चलेंगे, ठीक है। फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, वी यूज मॉडर्न रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग फैसिलिटीज, ये भी चलता है आजकल, isn't it? ये भी एक पार्ट है किसका, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इन रिसेंट टाइम्स एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सिस्टम। आज की तारीख में क्योंकि नाबार्ड बैंक है जो बेसिकली एपेक्स बैंक है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर, कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द फार्मर। इसी तरह से आजकल ये हो रहा है कि जो किसान की फसलें होती हैं, बिकॉज अगर मान लो रेन नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसका भी बीमा होने लग गया। कभी कभी किसान के खेत में आग लग जाती है, ठीक है ना, तो उसका भी बीमा होने लगा है आजकल, ठीक है। तो इंश्योरेंस हैज आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है।
तो मतलब कहने का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Inadequate infrastructure have multiple adverse effect on health, improvement in water supply, ठीक है ना. Sanitation have a large impact by reducing morbidity, state of being unhealthy or disease from major waterborne disease and reducing the severity of disease when it occur. अब देखो बहुत रिपरकशंस, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं हो प्रॉपर. आप देख लीजिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हालतें क्या हैं. अब वहाँ पे सारी की सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, तो आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप सबको दे रहे हो, आप स्लम्स में भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो सैनिटेशन जो अच्छा होगा उससे मॉर्बिडिटी रिड्यूस हो जाएगी. मॉर्बिडिटी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी और डिजीज, है ना. बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं मालनोरिश्ड होते हैं क्योंकि पानी में आर्सेनिक मिला हुआ है, पानी के अंदर कभी कभी कीड़े होते हैं बहुत बड़े, टाइफाइड हो जाता है ना. टेप वॉर्म करके एक डिजीज़ आती है ना, वो भी शरीर में घुस जाती है. ये सारी चीज़ें नहीं होंगी एंड देयर विल बी हेल्दी पीपल, सिटीजन, ठीक है ना. when it occurs, okay, air pollution and safety hazards connected to transportation also affect morbidity, particularly in densely populated state. इसी तरह से एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, ठीक है ना. हेल्थ हजार्ड उसके भी बहुत है, किसके? एयर पोल्यूशन के. Importance of infrastructure in development. Following points highlights how exactly infrastructure contribute to the process of growth and development. First, impact on productivity. Infrastructure plays an important role in raising productivity with improved roadways. ठीक है ना. किसान को माल लाने बेचने में दिक्कत हो रही है, बैलगाड़ी से ले जाता कच्चे रोड से कहीं, कहाँ पे? वो एक गांव से शहर में. मान लीजिए रतलाम में कोई आसपास कोई गांव है बहुत ही इंटीरियर में, है ना, वहाँ वो फसल उगाता है, रतलाम की मंडी में बेचना चाहता है तो रोड ही नहीं है, ठीक है ना. अब वो बेचारा कच्चे रास्ते से बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी पे रख के लाता है. अगर कोई पक्का रोड वहाँ बन गया तो वो ठीक है ना, वो हो सकता है ट्रक कर ले, वो हो सकता है ट्रैक्टर में लेके आ जाए, हर, ठीक है ना. ट्रक और ट्रैक्टर यहाँ नहीं जा सकते, कहाँ पे? कच्चे रोड पे प्रॉब्लम आती है, कीचड़ बहुत हो जाता है, ठीक है ना. तो इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, उसको भी इंथुजियाज्म रहेगा कि यार मेरे को माल बेचना है, थोड़ा और उगाऊँ मैं अच्छी तरह से, ठीक है ना. ज़ील से वो पूरा इंथुजियाज्म से कुछ चीज़ें उगाने की कोशिश करेगा, ठीक है. नहीं तो अगर शहर का रास्ता ही नहीं होगा बराबर तो सोचेगा यार चलो गांव में भेज देता हूँ यार आसपास, ठीक है. शहर में उसको दाम भी ज़्यादा मिल रहा है बट रोड नहीं है प्रॉपर, तो उसकी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना. विथ इम्प्रूव रोडवेज, वेयर हाउसेज, गोदाम नहीं है तो माल कभी कभी ये होता है कि सड़ जाता है लोगों का. वेयर हाउसेज, बड़े बड़े गोदाम नहीं है उसके, शहर गांव में नहीं है, ठीक है ना. वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे वो अपना माल स्टोर कर सके. अचानक बारिश आ गई, आग लग गई, फिर प्रॉब्लम उसको. फार्मर्स कैन ईजिली सेल द प्रोड्यूस इन डिफरेंट मार्केट, अगर वो मार्केट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो. ऑल्सो इरीगेशन फैसिलिटी हैज़ रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर वाटर. अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए इसको, जिसकी वजह से किसान लड़ रहे हैं. Irrigation facilities have reduced dependence on monsoons for water needs, which not only increases productivity but also production level. अब यहाँ लिखा तो है बट ये जो irrigation facility has reduced, ये irrigation facilities कहाँ पर? only for the rich farmer, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं irrigation को, पानी, बिजली. जो बेचारे बहुत गरीब किसान हैं उनको तो अभी भी मानसून पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है. तो कहने के लिए हम कह सकते हैं, है ना. और फिर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट. एक और पॉइंट है यहाँ पे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे रोड अच्छा है, पूरा इंफ्रा, पानी की कोई कमी नहीं है, तो नेचुरली वहाँ पे बिग बिजनेस हाउसेज आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया के अंदर आएंगी. अब मान लीजिए रतलाम का शुरू से ये रहा है कि रतलाम में कोई बड़ी इंडस्ट्री की मांग हुई, कभी वो पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि रतलाम में एक प्रॉब्लम शुरू से रही. सज्जन मिल वगैरह हुई, बंद हो गई, इप्का चल रही है अभी, बाकी दूसरी इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, है ना. उसका एक कारण ये था कि रतलाम के अंदर पानी की हमेशा कमी रही है, तो बिग बिजनेस हाउसेज वर ऑलवेज हेजिटेंट, ठीक है ना. तो ये भी एक रीज़न होता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगा बड़े बिजनेस हाउसेज के द्वारा. लो इन्वेस्टमेंट पॉइंट टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एन इकोनॉमी. अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स. अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसा कि मैंने अभी हाल आपको बताया है, ठीक है. I hope you are able to understand what I am saying, which gives investment avenues and profitable ventures
Generate linkages in production, better means of transport and communication. Robust means very strong system of banking and finance. Generate better इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज। अगर ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, उसके साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो, और फिनेंस अगर किसानों को जल्दी मिल जाए, और उसके साथ फिर क्या इंडस्ट्री भी लिंक हो जाए, तो बहुत फ़ायदा। ये क्या प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है, ये जैसे अगर महाराष्ट्र के कुछ गांव देखें आप, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिंकेज प्रॉपर है, हरियाणा में प्रॉपर है, पंजाब में प्रॉपर है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में क्या है कि एक चीज़ डेवलप है तो दूसरी चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम। कहीं पर अगर बैंक है तो वो मार्केट बराबर नहीं है, मार्केट है तो इंश्योरेंस की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये सारी परेशानी है, ठीक है ना। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एक्सपांशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट द एक्सपांशन ऑफ द अदर, ठीक है ना। तो अगर एक प्रॉपर है, मान लो कहीं पे एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप हो गई है मान लीजिए, तो अगर इंडस्ट्री डेवलप हो गई है तो स्लोली एंड ग्रेजुअल, अगर गवर्नमेंट विलिंग है तो दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर वो इंडस्ट्री डेवलप हुई तो बैंकिंग भी आ जाएगा और दूसरे सेक्टर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। सो इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस जिसको हम कह सकते हैं ना, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एक्सपांशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट द एक्सपांशन ऑफ द अदर, है ना। ये होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरी जैसे मैंने बताई कि अगर सब कुछ सही चले, गवर्नमेंट का अप्रूवल हो, तो ये लिंकेजेस ईजिली हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बिखरे हुए होते हैं, लिंकेजेस हो नहीं पाते हैं। इंडस्ट्री तो आ गई, ठीक है, मान लीजिए कोई मान लीजिए एक दूर दराज के इलाके में, छत्तीसगढ़ में कहीं पे, झारखंड में कोई इंडस्ट्री किसी ने डाल दी। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री तो डाल दी, पानी भी बहुत है मान लीजिए उस एरिया में, लेकिन लोग बहुत गरीब है, उनकी परचेसिंग पावर बहुत कम है, तो बेचारा जो भी करेगा काम वो लोकल लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर बहुत है, तो या तो उसको यहाँ से ले जाके कहीं और बेचना पड़ेगा शहर में बहुत दूर, तो उसकी इनकम होगी, तो उसको गॉट इट, तो प्रॉफिट मार्जिन विल बी लेस फॉर हिम, क्योंकि वो लॉजिस्टिक में उसका इतना खर्चा हो जाएगा, है। और वहाँ के लोकल लोग उसमें कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भाई जो इंडस्ट्री लगाई उसको सफिस्टिकेटेड स्किल पावर, मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, और वहाँ गांव है आसपास, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो बाहर से लेके आओ फिर वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी। इन्हांसेस साइज ऑफ द मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर से मार्केट का साइज भी इन्हांस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसेस द साइज ऑफ द मार्केट एज लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन कैप्चर मोर मार्केट। रोड सही हैं पूरे के पूरे, है ना, कहीं पर, तो उससे क्या होता है कि एक, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है किसी चीज़ का, बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी, तो फिर मार्केट भी वहीं पे, अगर सरकार कोशिश करे तो वहीं पे आसपास मार्केट भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। enhances ability to work, है ना। अब अगर हेल्थ किसी बंदे की बहुत अच्छी है, तो हेल्थ अच्छी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की अच्छी रहेगी, ठीक है ना, कि वो बिल्कुल साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी जैसा हिसाब रहेगा, ठीक है ना, तो उसका काम करने में भी दिल लगेगा, नहीं तो काम ही नहीं कर सकता ना वो, उसकी इनएफिशिएंसी हो जाएगी। Social infrastructure increases the quality of life of workers, thereby increasing their efficiency. Healthcare centers, educational institutions, and other such facilities inherit skill which increases ability and efficiency to work. ठीक है ना? So educational institution and other such facilities inherit skills which increases ability and efficiency to work. ठीक है, तो हेल्थ तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव होगी बंदे की तो उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो आपको जानकारी देते हैं कि मेंटली फिट क्या, जैसे आजकल आप इन्फोसिस में जाइए तो इन्फोसिस में उन्होंने हेल्थ सेंटर्स भी रख रखे हैं जहाँ पे योगा भी सिखाया जाता है, इंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी रहता है लोगों को कि आप कुछ गेम भी खेल सकते हो, ठीक है ना। तो उससे आप क्या है, शांत दिमाग से काम वहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ठीक है। Educational institution other such facilities inherit skills which increases ability and efficiency to work, ठीक है। और facilities outsource facilitates outsourcing. India is emerging to be a global destination for all kinds of outsourcing. आपने सुना होगा कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर बहुत हैं, स्टडी सेंटर्स हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, शायद आपको नहीं मालूम, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड सच अदर सर्विसेज ओविंग लार्जली टू द साउंड सिस्टम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ पे बैठे बैठे, आपके घर में बैठे बैठे, इफ कोई फॉरेन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट
किसी फॉरेन डॉक्टर को दिखा सकते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस, तो ही वुड कंसल्ट कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे जानकारी ले सकते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना। आउटसोर्सिंग हो रही है आजकल, इंडिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कुछ काम यहाँ पे इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रेट बहुत कम है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। वहीं पर अगर वो कुछ काम को करवाते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका से फ्रांस में गया तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ के कामों को आउटसोर्स यहाँ पे कर देते हैं इंडिया के अंदर। और कॉल सेंटर्स वगैरह में नाइट में आपको काम पर करना पड़ता है, क्योंकि नाइट में वहाँ पर दिन होता है ना, यू टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट ऑल्सो, अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है, और वो सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गॉट इट। और जैसे कि अगर आप लोकल लेवल पे बात करो, जियो, एयरटेल, इनका, फ्लिपकार्ट, इनका जो व्हाट वी से कॉल सेंटर्स हैं, या इनका जो क्या कहना चाहिए सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो भी सब कॉल सेंटर्स वाले होते हैं, तो बहुत एफिशिएंट रहता है। आप देखिए कि आप कितने तमीज़ से बात करेंगे वो, और आपकी प्रॉब्लम को हर समय वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लाइक दैट इट इज। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कहोगे भाई फ्लिपकार्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अमेज़ॉन का कैसा, तो बोलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, ठीक है, आज हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई विल जस्ट डिलीवर, आई विल अपलोड आफ्टरवर्ड्स। आज इतना रखते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।